اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ بشرا بی بی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کے درمیان اختلافات سے متعلق مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، جس میں دونوں چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں سے اپنے اختلافات کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ آڈیو میں بشرا بی بی کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ہمارا مسئلہ پڑ گیا تھا کیونکہ ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، بلکہ ہماری تو اچھی خاصی ہو گئی تھی، جس پر لطیف کھوسا کہتے ہیں اچھا بشرا بی بی آڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ وہاں کافی ایشو کھڑا ہو گیا تھا، تو میں نے زیادہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں، بس میں نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو کہہ دیا کہ میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب لیٹ ہو رہا ہے تو انہی کو دوں گی۔ لطیف کھوسا بشرا بی بی سے کہتے ہیں چلیں بہرکیف وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے۔ اصل میں ہوا یوں، بشرا بی بی لطیف کھوسا کی بات کاٹ کر کہتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کی اتنی ہمت ہو۔ تو میں نے آگے سے یہ کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کر آفس چلی جائیں۔ بشرا بی بی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی ہیں ہم پوچھنے گئی تھی کہ آپ نے زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں۔ وہ بہت زیادہ بولی تو میں نے خان صاحب سے کہا نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں، تو پھر میں اٹھ کر آ گئی۔ لطیف کھوسا جواب میں کہتے ہیں باہر کیف پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے۔ بشرا بی بی ایک بار پھر لطیف کھوسا کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم نے جانا نہیں تھا۔ کھوسا صاحب کی اہلیہ نے کہا تم لوگ جا کر ملو۔ میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، پھر میں خاموش ہو گئی۔ سردار لطیف کھوسا نے کہا میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں، میں نے یہ ضرور کہا کہ دیکھیں بار بار آپ ضد مت کریں، جس طرح سے میں نے مناسب سمجھتا ہوں مجھے کرنے دیں۔ اسی بات پر انہوں نے کہا کہ جی بدتمیزی کی ہے، میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی؟ مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی کہہ رہی ہیں نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ، ہم تو ان سے ویسے ہی ملنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں آگے ان کا رویہ کہتی ہیں انہوں نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے اتنا برا بولا۔ بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا۔ اچھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا، میں حیران رہ گئی تھی، پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں، بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی۔ چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں نے وہ اصل میں ہوا یوں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی۔ تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں؟ میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں، تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی، تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں، تو میں پھر اٹھ کے آ گئی۔ وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے۔ وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا، ہمیں ان کی کھوسا صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو۔ میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، پھر میں خاموش ہی ہو گئی۔ جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں، میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں، آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب۔ انہوں نے اسی یہ نہیں بات پہ کہا، انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری آپ، میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی؟ نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ تو ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان سے۔ جی فیاض الحسن چوہان، بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بنیادی طور پہ لطیف کھوسا صاحب بھی اپنے ویسٹرن انٹرسٹ اور ایجنڈے پہ تھے، بشرا بیگم صاحبہ پچھلے 6 سال سے ان کا بھی ایک اپنا ایجنڈا تھا، اور بنیادی ایجنڈا دونوں کا ایک ہی تھا، طاقت، اقتدار اور پیسہ، اور اپنی سیٹ اور پی ٹی آئی اور عمران خان
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को इस्तेमाल करके अपने अपने मफाद हासिल करना। अब लतीफ खोसा साहब ना पीपल्स पार्टी छोड़ते हैं ना ज्वाइन करते हैं जनाब तहरीक इंसाफ जनाब खुद खुला के, और बुशरा बीबी भी बेचारी जनाब वो तंग है बहनों के हवाले से भी, पार्टी के अंदर भी, और स्पेशली चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से अब उनको चीजें क्लियर हो गई हैं कि जब बैरिस्टर गौहर को नामजद किया गया कि अब इनकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। जिस बुशरा बीबी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते थे ये मेरी मुर्शद है, इससे ज्यादा पाक साफ और इससे ज्यादा समझदार और इससे ज्यादा आइडियल मेरे लिए कोई नहीं है, उसको इन्होंने पूछना गवारा नहीं किया कि जनाब उनकी जगह किसको चेयरमैन बनाया जाए और क्या उनकी भी कोई ख्वाहिश है चेयरमैन बनने की। और सारों को पता है कि बुशरा बीबी का अपना एक जाती एजेंडा और इंटरेस्ट था। उधर से अलीमा खान साहिबा है, वो तो पिछले 26 साल से ये बात जा बजा तहरीक इंसाफ के हलकों में ये कहती थी, और उसके हम भी आई विटनेस है कि अगर खुदा न खास्ता चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कुछ हुआ तो जनाब ये पार्टी हमारी है, इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे खानदान की, मेरे भाई की। तो अब ये एक नेचुरल सी बात है कि ये आपस में लड़ाई तो होगी। और बुशरा बीबी बेचारी वैसे डिस्टर्ब है, उनका खावंद, उनके खिलाफ साबका खावंद चला गया अदालत में, करैक्टर से लेके इखलाक से लेके पैसा इज्जत वकार हर चीज की धज्जियां उड़ गई। और इधर से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी एक चीज क्लियर हो गई है कि बुशरा बीबी का कोई ऐसा कोई रूहानियत वाला खाता नहीं था, वो सिलसिला फैजिया था जिसके तहत जनाब वो रहमतुल्लाह जिन था और सारे मामलात थे, इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क था, तो वो भी अब इनको वो अहमियत देने को तैयार नहीं। तो ये सारा कुछ रल मिल के जनाब आप ये सारी इस तरह की आपको कई आडियोज मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनों के दरमियान इख्तलाफात से मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें दोनों चेयरमैन पीटीआई की बहनों से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। ऑडियो में बुशरा बीबी को कहते सुना जा सकता है कि वहां पर हमारा मसला पड़ गया था क्योंकि उनकी बहनें भी साथ थीं, बल्कि हमारी तो अच्छी खासी हो गई थी। वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने हुआ असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हम इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार अब्दुल्ला गुल। अब्दुल्ला गुल साहब मुझे बताइएगा कि मुबैना ऑडियो लीक सामने हुई, जो लीक हुई है बुशरा बीबी और लतीफ खोसा के दरमियान, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये जो मामलात हैं ये बहुत खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और जो ऑडियो लीक्स हैं, पहली बात यह है कि कोई उनको चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये बात हो रही है कि जी उस ऑडियो लीक के जो है वो सच्चाई के ऊपर बात नहीं कर रहे। फोरेंसिक क्यों नहीं कराते? क्या वजह है कि फोरेंसिक कराने से डरते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जो सारे के सारे काले धंधे हैं वो सामने लोगों के तश्तज़बाम हो जाएंगे, इसलिए जो है ये छुपते फिर रहे हैं? अब देखना यह है कि ये एक फैमिली की लड़ाई शुरू हो गई है और इसके अंदर जो है वो जो पीर जो है वो बमुकाबला हमशीर है और ज़ाहिर है अब खुद खान साहब असीर में हैं। तो मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये गड़बड़ चली जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि माजी में जो ऑडियो लीक्स आई थी उनको भी किसी ने ये नहीं कहा कि वो गलत हैं, उनका किसी ने अदालत की तरफ रुजू करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने जो है उसको जो है वो जिसने बोला उसकी या उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी या उसको जो है वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी या फिर जो है उसके ऊपर जो है वो मनगढ़ंत इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी सच्चाई के ऊपर जो है वो कोई बात नहीं रही। अभी ये देखिए ना, जो इस टाइम पे गौहर साहब को लगाया है
तो वो तो इलेक्शन कमीशन के तमाम कवानीन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन के जो प्रोसेस होता है, एक पार्टी का चेयरमैन जब आप नामजद नहीं किया जाता, पार्टी का चेयरमैन चुना जाता है, तो वो चुनने का जो सारा सिलसिला था वो कहाँ था, वो क्यों इतना ढका और पोशीदा हुआ था। इसका मतलब है कि पूरी जो पार्टी जो के दरमियान में इतने साल जो है वो बरसरे इक़्तिदार रही, और उसके अंदर सुबह केपी में 10 साल तकरीबन उनकी हुकूमत रही, पौने 9 साल। तो फिर ये बताइए कि उन्होंने क्यों नहीं उसके ऊपर कोई वहां उनके पास लीडरशिप थी जो उनको बैरिस्टर गौहर साहब के, क्योंकि साफ सी बात है, नजर ये आ रहा है कि वो पार्टी लीडरशिप ये चाहती है कि किसी तरीके से कोई एक ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल डमी हो उसको सामने रखा जाए और उससे मामला चलाए जाए। अब दूसरी तरफ जो है वो जाहिर है, हमने ये भी देखा कि उनकी एहलिया जो है वो बाकायदा मदाखलत करती रही और बहुत ज्यादा मदाखलत हुई, और हमने ये भी देखा कि वो मदाखलत जो थी सरकारी मामलात में थी, यानी कि वफाक में भी थी और सूबे में भी थी, और बराह रास्त जो है वो उनको हुक्मनामे वजीर आला को जो है वो जारी हुआ करते थे, मिनिस्टरों को जारी होते थे। लेकिन जो लोग इनके साथ खड़े रहे, मुश्किल वक्त में साथ रहे, उनको तो बिल्कुल इन्होंने जो है वो पसे पुश डाल दिया, बल्कि फरामोश कर दिया। वो लोग जो असेंबली में आखिरी वक्त तक खड़े रहे, जिन्होंने जो है वो मुश्किलात काटी, जेलें काटी, लेकिन अब ये लग रहा है कि बैरिस्टर गौहर के जरिए जो है वो मामलात को आगे बढ़ाए जाएंगे। असली मामला जो है वो पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप के लिए है, और मुझे लग रहा है कि गौहर साहब को तो जो सिर्फ सामने रखा गया है, लेकिन सेक्रेटरी जनरलशिप जो है वो किसी ऐसे बंदे के पास जाएगी जो, या खातून के पास जाएगी जिनके तमाम असर और रसूख होंगे। जो साबिक खातून अव्वल हैं वो तो हमें ये भी पता है कि उनकी जाती जिंदगी में हालांकि अवाम को वोट दिए गए थे, अब वोट तो अवाम ने उनके चेयरमैन को दिए थे ना, पीटीआई के, ना कि जो है वो खातून अव्वल को दिए थे। देखें, उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि खुद जो है वो ये कहते रहे कि जी मैं तो मुर्शिद जो है वो फैसले करते हैं, मुर्शिद जो है वो बताएंगे, मेरे मुर्शिद तो वो हैं। भाई, लोगों ने आपको वजीर आजम चुना था, कोई बुशरा साहिबा को जो है वोट नहीं डाले थे, और आपने जो है तमाम इख्तियारात जो है उनके हाथ में डाल दिए। तो ये तो मेरे ख्याल में अपने मनसब से भी जो है वो उन्होंने इंसाफ नहीं किया। तो बाकी तहरीक इंसाफ का जो लोगो है वो तो अब मेरे ख्याल में बड़ा ही एक जिसको कहते हैं कि वो बोसीदा हो चुका, क्योंकि जो इंसाफ है, जो पार्टी अपने पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं चाहती, वो मुल्क में जमहूरियत निज़ाम को कैसे आगे परवान चढ़ाएगी। और ये बाय द वे सिर्फ इस जमात के लिए नहीं है, ये तमाम जमातें जो हैं इनके अंदर कोई आपको जमहूरियत नहीं नजर आती, लेकिन ये मुल्क में जमहूरियत के ख्वाहां हैं। दूसरी तरफ जो अगर हम देखा जाए तो वो इससे जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो एक इंतहाई मायूस कुन हालात जो है वो तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए पैदा कर दिए गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि वकला का एक विंग निकला जिसने जो है वो बाकायदा बुशरा बीबी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, फिर अगले दिन जो है वो अलीमा साहिबा को निशाना बनाया गया। उसके बाद अब ये एक नई बात सामने आ रही है, और लतीफ कोसा साहब को कौन नहीं जानता कि वो किसके नुमाइंदे हैं। लतीफ कोसा साहब हो गए, एतजाज एहसन हो गए, ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर गौहर साहब जो हैं वो किधर से चल रहे हैं, और उनका क्या हैसियत है पार्टी के अंदर, उनकी कितनी कुर्बानियां हैं, माजी के अंदर वो किस ओहदों पे फायज रहे। तो ये वो तमाम बातें हैं जो मेरे ख्याल में एक वोटर जो है वो सोचने पे मजबूर हो गया है कि क्या ये पार्टी जो है लोगों को इंसाफ वाकई दे सकती है, क्योंकि वो तो अपने अंदर इंसाफ नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि लोगों को ये ख्याल था कि शायद खान साहब बाहर आ जाएंगे, खान साहब जो है वो इतने तकड़े हो गए हैं कि वो इदारों को जो है वो आगे बुरा भला कह रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन जो इदारों के सरबराहान को मीर सादिक, मीर जाफर कहने वाले, आज खुद जो मीर सादिक और मीर जाफर जो आदिल राजा और हैदर मेहदी के साथ जिनके ताल्लुकात निकल आए हैं, जिनके मामलात जो हैं वो ऐवान अदल तक पहुंच चुके हैं, और वो तमाम जज साहिबान जिनकी ऑडियो लीक्स आई हैं वो आज उनके ऊपर शदीद जो है अवाम का एक गमोगुस्सा पाया जाता है। अवाम उनसे सवाल पूछती है कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ के तकाजे हैं जो पूरे हो रहे हैं, जो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए आपकी जो है हाजिरियां लग रही हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिसको देखते हुए तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक दरारें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, ग्रुप जो है वो बंदी हो रही है, और आने वाले इलेक्शनों में फिर
फिलहाल उनके पास कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं है। अगर जिस पार्टी के पास चेयरमैनशिप के लिए मजबूत कैंडिडेट ना हो तो फिर आप मुझे बताएं कि बाकियों को तो आप छोड़ ही दें, बाकी जो हल्का वाइज जो सियासत है उसके ऊपर क्या करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई ऐसे अपनी इलेक्शन कैंपेन का ऐलान नहीं किया। फिर अभी इलेक्शन कमीशन ने उनको ये 20 दिन के जो मोहलत दी थी उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो वो तो तमाम तकाजे, जो कानूनी तकाजे और इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा ही नहीं किया गया, उनको मलूज़े खातिर ही नहीं रखा गया। तमाम चीज़ों को जो है वो अपने अंदाज में चलाने की कोशिश की जा रही है। इससे नतीजा ये निकलेगा कि इनको इलेक्शन के अंदर बहुत मुश्किलात का भी सामना उठाना पड़ेगा और इनको मायूसी भी जो है वो देखनी पड़ेगी। जी अब्दुल्ला गुल साहब, जैसा कि अभी आपने फरमाया और साबिक वजीर आजम भी ये कहते रहे हैं कि मेरे मुर्शद वो हैं, बुशरा बीबी से मुताल्लिक ये कहते थे। इक्तदार की इस जंग में साबिक वजीर आजम का वजन किस पलड़े में होगा, मुर्शद की जानिब या बहनों की जानिब? जी यही मैंने तो आपको ये बताया कि एक तरफ पीर एक तरफ हमशीर, क्या करेगा असीर। तो मसला ये है कि दो पलड़ों में जो है वो लुट जाएंगे। लेकिन हमने तो ये देखा है कि मुर्शिद के कहने पे तो उन्होंने, हालांकि तब तो उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी अहलिया जो रेहाम खान साहिबा थी उनको तलाक दे दी थी। तो फिर लगता तो यही है कि मुर्शिद जो है वो आगे आ रहा है, लेकिन फिर ज़ाहिर है फैमिली जो होती है वो बहुत सारे राजों की अमीन होती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो इसमें मामलात हैं वो फिर जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा गंद उठना जो है वो शुरू हो जाएगा, जो शायद फिर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को मजीद जो है वो धचका पहुंचा सकता है। तो मेरा तो जाती इसके अंदर मैं देख रहा हूँ हालात वो बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि घर की बातें जो हैं वो मेरे ख्याल में अब गली मोहल्ले की बातों को जो है वहां तक पहुंच जाएंगी। और अगर ये हुआ तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुआशरे के हवाले से भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को अपने ये मामलात को संभालना पड़ेगा। उनको चाहिए कि इस मामले। जी बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब, आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शोकाज नोटिस भी चैलेंज कर दिया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हो तो सदर को बताई जाती हैं। 16 फरवरी 2023 को दरखास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बदनीयती पर मबनी मुहिम का आगाज किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में इस्तदा की गई कि 24 नवंबर का शोकाज नोटिस कलअदम करार दिया जाए। दूसरा शोकाज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तिदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसको दी नहीं जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। नवाज शरीफ के वकील काजिम मिसबा, अरशद तबरेज, नैब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला और सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए हैं। नवाज शरीफ के प्लेडर राना इरफान भी अदालत में पेश होकर शामिल तफ्तीश हो गए। वकील सफाई का कहना था कि सवालात दे दिए गए हैं, सवालात के जवाब भी फराहम कर दिए गए। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि मजीद कार्रवाई होगी, इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है। वकील सफाई काजी मिसबा ने अदालत में कहा कि नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो चुके सवालनामा मुहैया किया गया था। 2019 में नैब रेफरेंस बनाया गया था। उस वक्त नवाज शरीफ इंतहाई अलील थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। इस पर अदालत ने नैब से इस्तफसार किया कि अब इस पर क्या करें। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने केस पर समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी।
इलेक्शन कमीशन आज हल्का बंदियों की अशात करेगा। जराये के मुताबिक आज शाम तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हल्का बंदियों की अशात हो जाएगी। हतमी वोटर फहरिस्तें दिसंबर के आगाज में आवीजा कर दी जाएंगी। जराये ने मजीद कहा है कि DROs और ROs की तजदीद शुदा फहरिस्त तैयार कर ली गई है। DROs और ROs की तैनाती 2 से 3 रोज में कर दी जाएगी। आपको हम खबर से आगाह करें कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे चौधरी मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तेहारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोनिस इलाही से मुतालिक मुख्तलिफ जगहों पर इश्तेहारात भी अवेजा कर दिए गए हैं, जिसमें तहरीर किया गया है कि मोनिस इलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दी गई थी, लेकिन वो रूपोश हैं और अदालत में पेश नहीं हो रहे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पतोकी से खबर आपको दें, जहां मुल्तान रोड पर निजी कॉलेज की बस पर कार सवारों की फायरिंग का मामला। कॉलेज इंतजामिया ने बेहिस्सी की इंतहा कर दी। जख्मी तालिबात को अस्पताल छोड़कर टूर पर रवाना हो गई। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। तालिबा आयशा की अस्पताल में हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। जानते हैं पतोकी कॉलेज की स्टूडेंट अंसा नवाज से, जो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा। अंसा नवाज, बताइएगा वाकया कैसे, कब और कहां पेश आया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पतोकी से हमारे कॉलेज का टूर बच्चियों को लेकर कश्मीर जा रहा था कि मुल्तान रोड पर सुंदर के करीब नामालूम कार सवारों ने गाड़ियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हमारी 2 स्टूडेंट लड़कियां शदीद जख्मी हो गई। कॉलेज इंतजामिया ने रेस्क्यू 112 को कॉल की और दोनों लड़कियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों लड़कियों में से हबीबाबाद की रिहायशी आयशा की हालत इंतहाई नाजुक है और वो इस वक्त जंजर अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मेरी वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील है कि वाकया में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फरहम किया जाए। बहुत शुक्रिया अंसा, आप हमें हादसे की तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब खबर आपको दें कि गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 29 नवंबर को 1600 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। 15 अगस्त 2022 से अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बशिंदों की कुल तादाद 3,87,000 से जायद हो गई है। 1600 अफगान शहरियों में 373 मर्द, 362 खातीन और 865 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 52 गाड़ियों में 362 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई जा चुकी है। अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। हिंदुत्वा सरकार के आलमी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए हैं। न्यूयॉर्क में अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंटों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि रॉ एजेंटों ने मोदी सरकार की ईमा पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का प्लान बनाया। मोदी सरकार ने रवां साल मई में गुरु पतवंत सिंह पन्नू को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल करने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में तैनात भारतीय रॉ एजेंट्स ने बदनाम जमाना मनशियात स्मगलर निखिल गुप्ता को उजरती कातिल ढूंढने का कहा, जिसने एक और जुराइम पेशा साथी जो अमरीकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का सोर्स था, ये काम सौंपा। अमरीकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी FBI, CIA और महकमा इंसाफ ने मोदी सरकार को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत अमरीकी इंटरपोल एहलकारों ने उजरती कातिलों का रूप धार कर निखिल गुप्ता और रॉ एजेंटों से मुलाकात की। मुलाकात में न्यूयॉर्क में मकीन सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पन्नू को $1,00,000 के एवज कत्ल करने की डील हुई। 9 जून को निखिल गुप्ता ने अंडरकोर अमरीकी एहलकारों पन्नू के कत्ल के लिए $15,000 की अदायगी भी की।
19 जून को कनाडा में प्रदीप सिंह निजर के कत्ल के बाद निखिल गुप्ता ने अंडरकवर अमरीकी एहलकारों को पन्नू को भी कत्ल करने का पैगाम भेजा। सबूत हाथ आने पर अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने निखिल गुप्ता को 30 जून को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया। भारतीय निजात कैनेडियन सिखों के कत्ल के बाद अमरीकी खुफिया इदारे पहले से हाई अलर्ट थे। जून में एफबीआई ने अमेरिका में मुकीम बॉबी सिंह, अमरजीत सिंह और गुरुपतवंत सिंह को मोदी सरकार की तरफ से मुमकिन टारगेट किलिंग की वार्निंग भी दी थी। मामला सामने आने पर बाइडेन इंतजामिया की तरफ से मोदी सरकार से वजाहत तलब की गई। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवान ने अगस्त में अजीत दोवल से मुलाकात में मामला उठाया। अगस्त में सीआईए और नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराहान ने भी रॉ चीफ रवि सिन्हा को ऐसी कार्रवाइयों के नताइज से इंतबाह किया। सितंबर में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सदर बाइडेन ने मोदी से ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करने का मुतालबा किया। 19 सितंबर को कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो ने भी प्रदीप सिंह नजर के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया था। भारतीय हट धर्मी और तहकीकात में ताउन न करने की वजह से भारत और कनाडा के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए थे। कत्ल के जवाब में कनाडा ने भारत में अपने बेशतर सफारत खाने बंद कर दिए थे। इसी हवाले से मयानी से अफसोसनाक खबर आपको दें कि थाना मयानी के इलाके कल्याणपुर में लड़ाई की रंजिश पर 32 साल शख्स को फायरिंग से कत्ल किया गया है। थाना मयानी के इलाके कल्याणपुर में तारिकुल्लाह बख्श वॉलीबॉल ग्राउंड से मोटरसाइकिल पर वापस घर आ रहा था। जब घर के करीब पहुंचा तो 4 अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो मौत के घाट उतर गया। कत्ल की वजह 1.5 माह कबल मुलजमान के साथ मकतूल की लड़ाई बताई जाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल अस्पताल मयानी भी मुंतकिल किया गया। अंबिया कराम, सहाबा कराम और मुकद्दस हस्तियों का दिफा हमेशा से करते आ रहे हैं। जेहलम के दौरे के बाद अजीम मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी की जामे महरिया ज़ियाउल उलूम में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी की कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से खुसूसी गुफ्तगू हुई। जी उबैद सुलेमानी आगाह कीजिएगा। हनीफ कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि 26 नवंबर को इंजीनियर मिर्जा के साथ मुनाजरा करने के लिए गए। कुरैशी साहब का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। उनसे हम जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, इतनी इज़्ज़तें आपको मिलती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एबटाबाद निजी किसी दौरे पे आया था अपने फैमिली के कुछ मामलात में। तो भी जिन कुछ दोस्तों को पता चला यहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से वालियाना इस्तकबाल किया, नाराबाजी, गुलपाशी की, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है। और वो जो मुनाजरे के हवाले से लोग इतने एक्साइटेड थे और जो इतना ये टॉप ट्रेंड रहा ये मुनाजरा, तो उसकी बुनियादी वजह जिस शख्स के साथ मेरा मुनाजरा था उसके वो दावी और उसके वो नारे थे कि जिसमें वो ये कहता था कि भाई आए जो भी आएगा मैं मंजी ठोक के भेजूंगा, और कभी क्या कहीं बदतमीज लैंग्वेज थी और जिससे आम लोगों के तकरीबन ये तासुर चला गया था कि यार इस बंदे को मुंह लगाना ये इसके साथ कोई बैठने वाला आलिम नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हनीफ कुरैशी उसके सामने 10 मिनट नहीं बैठेगा। कईयों ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा वक्त भी क़यामत तक का दिया हुआ था। जी वक्त क़यामत तक था, इसीलिए हम क़यामत से पहले ही चले गए। लेकिन वो दिन उनके लिए शायद क़यामत आ गया कि क़यामत तक था तो फिर क़यामत में चले गए, इसलिए वो शायद तशरीफ नहीं लाए। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ये मुनाजरा जो बुनियादी तौर पर था ये इन्हीं लोगों की आंखें खोलने के लिए घरों की ख्वातीन से लेकर मदारस के बच्चों तक, स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से लेकर बड़े आली दर्जों के जितने भी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, तमाम के घरों तक ये पैगाम गया है कि इस शख्स के आप धोखे में ना आए। ये शख्स बुनियादी तौर पर एक खास एजेंडे पे लॉन्च किया गया है, वगरना पाकिस्तान में एक मौलवी साहब सऊदी अरब में रियाज सीजन की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। तकरीब में पाकिस्तानी सकाफती वीक का आगाज हुआ और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी समेत सऊदी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान से नामवर आर्टिस्ट आबिदा हुसैन, सलीम रफीक और दीगर गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तकरीब में बच्चों की परेड का एहतमाम भी किया गया जिसमें पाकिस्तानी कल्चरल को नुमायां दिखाया जा सकता है।
से वसीम खान की इस रिपोर्ट में सऊदी अरब में रियाज सीजन की रंगारंग तकरीबात जारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी सकाफती वीक का आगाज हुआ और हजारों की तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सऊदी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान से नंबर आर्टिस्ट, सिद्ध रैपर, आबिदा हुसैन, सलीम रफीक और दीगर गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को झूमने पर मजबूर किया। गुलकारों की परफॉर्मेंस के साथ साथ बच्चों की परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कल्चर को नुमाया देखा जा सकता है। सऊदी जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीर नौशीन वसीम ने पाकिस्तानी वीक के आगाज पर कहा कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारिकीन वतन के लिए तफरीह से भरपूर फ्री इवेंट्स का इनेकाद खुश आइंद है, जिसमें पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ कर शिरकत करनी चाहिए और दियार गैर में अपने वतन की तहजीब व तमद्दन और कल्चर से महजूज अफसोसनाक खबर आपको दें कि ओकाड़ा शेरगढ़ रोड पर ट्रॉलर की स्कूल वैन को टक्कर, वैन ड्राइवर और 2 बहन भाई समेत 3 अफराद मौका पर हिजाब हक जबकि 7 तालिब इल्म जख्मी हो गए हैं। 16 साल आरजू मौका पर जा बहक हुई है जबकि मतवफिया के भाई फैजान और ड्राइवर जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। 7 जख्मी तालिब इल्म जेर इलाज हैं। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया। ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया है। बिजली चोरी पकड़ने और रिकवरी करने के साथ साथ लेस्को इंतजामिया की जानिब से मुलाजमीन की हौसला अफजाई भी जारी है। एहसन कारकर्दगी पर इनामात देने में भी लेस्को की अव्वल पोजीशन है। गुज़श्ता रोज 2 लाइन मैंस को शानदार कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी कोहिनूर, बिल्कुल ऐसा ही है। लेस्को इंतजामिया ने पूरे डिस्कोर्स में लेबर के मसाइल और दुख दर्द का एहसास करने में नंबर 1 ले लिया है। नंबर 1 पर विराजमान सीईओ लेस्को शाहिद हैदर का लेबर की हौसला अफजाई और कारकर्दगी की तारीफ व तौसीफ और इनामात देने में फर्स्ट नंबर हासिल कर लिया है। शाहदरा के मीटर रीडर काशिफ हमीद भट्ट और मुरीद के सब डिवीजन के लाइनमैन मसूद रहमान को 50-50 हजार के नकद इनाम देकर उन्होंने पूरे डिस्कोज में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। दोनों अहलकारों को नकद इनाम देने और उनकी खिदमात को सराहना ताकि दूसरे अहलकार भी उनकी तरह इदारे और कौम की खिदमत कर सके। इस मौका पर डायरेक्टर CSD राय मसूद डायरेक्टर राय मोहम्मद असगर, एडमन डायरेक्टर जमीर हुसैन कुलाची, डायरेक्टर सेफ्टी फवाद खालिद, डिप्टी मैनेजर एडमन सलमान हैदर, एक्शन रावी रोड और एक्शन मुरीद के भी मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को तहनीती सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा। मेहनती और दयानतदार अफसरान अहलकार लेस्को का असासा हैं। इदारा भी ऐसे अहलकारों की कदर करता है और इंशाल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया साजिद काज़मी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्योरिटी टेन योन शेंग की क़यादत में चीनी जियांगजू पुलिस के वफ्द की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन बाहमी एतमाद, मोहब्बत और बेमिसाल दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये मजबूत दोस्ती कोहे हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइनीज सदर शी जिनपिंग का इनकलाबी मंसूबा है। CPIC से न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की वाबस्ता है। मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज और पुलिस एहलकारों के बाहमी तबादलों से पुलिस एहलकारों की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा।
आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि मुस्लिम लीग नून की अहम सियासी बैठक कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए सीनियर क़यादत मॉडल टाउन सेक्रेटरीट पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सना समेत दीगर क़यादत भी इस मौके पर मौजूद थी। मजीद जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी नुमाइंदा अजरा मेहर से। जी अजरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत की अहम बैठक हुई, जिसमें बहुत अहम फैसले किए गए। और इस बैठक में जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसके अलावा सीनियर लीगी क़यादत ने शिरकत की, जिसमें राना सनाउल्लाह, सरदार इयाज सादक वगैरह थे और मरियम नवाज भी थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को ऐवान फील्ड केस में 7 साल बाद बरी होने पर मुबारकबाद दी और गले लगाया और मियां नवाज शरीफ ने भी जवाबी मुबारकबाद दी और मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मरियम नवाज ने मुश्किल वक्त में जिस तरह से पार्टी का साथ दिया और हौसले से तमाम मुश्किलात का सामना किया, काबिल तहसीन है। और राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुश्किल वक्त जो है मुस्लिम लीग नून का वो गुजर चुका है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला बदले की सियासत नहीं करेंगे बल्कि मुल्क की जो है वो तरक्की के लिए काम करेंगे। और आइंदा इंतखाबात के लिए दोनों का दीन ने जो है वो अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया और लीगी रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश किया कि जिस तरह से मुश्किल हालात में वो जो है पार्टी के साथ खड़े रहे, उन्होंने तमाम मुसीबतें झेली और आइंदा इंतखाबात के लिए नए जोश व जज्बे के साथ भरपूर तैयारियां करने के लिए हौसला अफजाई भी की गई। जी बहुत शुक्रिया अजरा मेहर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। सर्विसेज अस्पताल में बिल्डिंग गिरने का वाकया पेश आया है। डीसी लाहौर राफे हैदर मौका पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक तमाम मजदूर बाहिफाजत निकाल लिए गए हैं। बिल्डिंग से मुल्हका इलाका हिफाजती इक़दामात के पेश नजर सील कर दिया गया है। आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में बिल्डिंग गिरने का वाकया, डीसी लाहौर राफे हैदर मौका पर मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। अब तक की इतलात के मुताबिक तमाम मजदूर बाहिफाजत निकाल लिए गए हैं। बिल्डिंग से मलहका इलाका हिफाजती इक़दामात के पेश नजर सील कर दिया गया है। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि वाकये की हर लिहाज से तहकीकात जारी हैं। नाजरीन, कमिश्नर लाहौर व DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा कल सुबह शहर में जारी तरक्याती मनसूबा का दौरा। उन्होंने बेदिया अंडरपास, शाहदरा चौक, अकबर चौक फ्लाईओवर और कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड का तफसीली दौरा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मनसूबों की यौमिया बुनियादों पर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर कमिश्नर लाहौर व DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा ने शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा किया है। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सहित कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी जारी कामों पर ब्रीफिंग दी है। DG-LDA ने तमाम मनसूबों पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। बेदिया अंडरपास के अतराफ में सड़कों की स्पोर्ट का काम तेजी से जारी है। मनसूबे से मुंसलिक सड़कों पर 3 लेन मार्किंग और फिनिशिंग पर वर्क का आगाज कर दिया गया है। मनसूबे के अतराफ से सड़कों की ग्रीन बेल्ट की तैयारी का अमल भी जारी है। LWMC की टीम में अकबर चौक फ्लाईओवर की धुलाई में भी मसरूफ है। शाहदरा चौक के अतराफ में भी तामीराती काम तेजी से जारी है। मोहम्मद अली रंधावा ने गुज़श्ता 24 घंटों में पेशरफ्त का जायजा भी लिया। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड के दोनों पैकेजेस तरक्याती कामों को मजीद तेजी लाई गई है। मनसूबे के पैकेज 2 सगियां तक बाबू साबू और पैकेज 1 सगियां तक न्याजी इंटरचेंज पर एहदाफ के असूल का जायजा भी लिया गया। 7.8 किलोमीटर तवील रोड पर 9 सब वेज भी बनाई जाएंगी। पैकेज 1 के 34 में से 21 गर्डर्स, पैकेज 2 के 51 में से 24 गर्डर्स तैयार कर लिए गए हैं। बकिया काम जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के 4000 किसान खानदानों से 2.5 अरब का फ्रॉड करने वाली कंपनी के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी नोटिस लेकर लूटी गई रकम वापस दिलवाए। मामला क्या है, जानते हैं किसानों के साथ मौजूद अपने रिपोर्टर राना इरफान हैदर से।
جی عرفان کیا کہنا ہے کاشتکاروں کا بتائیے. کے سامنے موجود ہیں تاجر کمیونٹی ہے اور بہت سے شہری ہیں جو یہاں پہ اس وقت الحرم ٹریڈرز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کی وجہ جانتے ہیں اور کیا جو ہے وہ لوٹ مار کی گئی ہے اور کیا آپ کا مطالبہ ہے یہ بتائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی الحرم ایک ٹریول تھی جو کہ زمینداروں کو قسطوں پہ آسان قسطوں پہ ٹریکٹر وغیرہ دیتی تھی. انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے فراڈ کیا ہے. انہوں نے ہمارے سے تقریباً 2 ارب 57 کروڑ روپے انہوں نے پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان سے اکٹھا کیا ہے. اس کی 2 برانچیں تھی, ایک فیصل آباد اور ایک لاہور ٹھوکر نیاز پہ, جو کہ میرا آبائی علاقہ بھی ہے اور میں وہاں سے رہنے والا ہوں. اچھے طریقے سے لوٹنے کا انہوں نے لالچ دیا ہے کہ 7% دیں گے, کیونکہ بینک آلریڈی 11% اور 16% پہ 30% پہ دے رہا ہے. لہٰذا انہوں نے 2 ارب 57 کروڑ روپے کا لیا ہے اور ہمیں چیک بھی دیے ہیں واپسی کے بھی. لہٰذا وہ بھی ابھی تک کیش نہیں ہوئے اور انہوں نے اس طرح کا لوٹا ہے غریب آدمی کو. لیکن مجھے افسوس ہے اپنی حکومت پہ جو کہ بڑے بڑے دعوے کرتی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. بھائی 1 ماہ ہو گیا ہے ابھی تک کسی نے ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے. کہاں گیا وہ آئی جی, کہاں گیا وزیر اعلیٰ جو میٹرو پہ جاتا ہے, چلڈرن ہاسپٹل پہ جاتا ہے, جنرل ہاسپٹل پہ جاتا ہے, ان کو 4000 خاندان نظر نہیں آتا ہے. لیکن کیا کریں, پتہ نہیں وہ سنتے نہیں ہیں یا وہ کہتے ہیں 2 ماہ 3 ماہ ہے چلو گزارے پہ لگا دے. لیکن جس طرح وہ دوسرے کاموں پہ نگرانی کر رہا ہے, ان 4000 خاندان کی بھی نگرانی کرنی چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے کہ 4000 خاندان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, تقریباً 1.25 کروڑ آبادی بنتی ہے جو کہ بھوکی جانی ہے. انہیں کیا پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں کتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں. کہاں گیا وہ چیف جسٹس جو 100 موٹر لیتا تھا, اب لے 100. آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ ملت پارک کے علاقے میں تاوان کی غرض سے اغوا کی گئی لڑکی بحفاظت بازیاب کروا لی گئی ہے. اس حوالے سے پولیس لائن کلا گجر سنگھ میں SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی زیر صدارت پریس کانفرنس کی گئی ہے, جس میں SSP کے ہمراہ SP CRO ڈاکٹر عقیلہ نقوی, SP اقبال ٹاؤن آپریشن زنیر احمد چیمہ, DSP عاطف معراج, DSP مسلم ٹاؤن انویسٹیگیشن حسن عزیز نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی آج جو ہے وہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر مختلف انچارج انویسٹیگیشن نے بہترین کارکردگی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ہے. سب سے پہلے اگر بات کی جائے انویسٹیگیشن پولیس اقبال ٹاؤن ملت پارک سے جو ہے وہ لڑکی کو تاوان کے لیے اغوا کرنے والے 4 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ اقبال ٹاؤن ڈویژن تھی جس کا تھانہ تھا ملت پارک ہے. ملزمان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ملزمان نے 18 سالہ سماویہ جو ہے وہ نور کو 30 لاکھ تاوان کے لیے اغوا کیا تھا, جبکہ SSP کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان میں حمزہ, طلحہ, افضل اور امرین بھی شامل ہے, جبکہ مغویہ امریکن اسکول ملت پارک میں 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. اسی طرح سے مرکزی ملزم حمزہ اور مغویہ جو ہے وہ سماویہ قبل جو ہے وہ اکٹھے پڑھتے تھے اور ملزمان کو مختلف جو ہے وہ جگہ پر پولیس کی جانب سے تلاش کیا گیا. آخرکار گھر گھر جو ہے وہ چھاننے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان کو مختلف معلومات میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے مغویہ کو برآمد کیا گیا ہے. انہوں نے تاوان کی رقم جو ہے وہ مانگی تھی اور باقاعدہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ بیٹ کوئن کے ذریعے جو ہے وہ تاوان کی رقم جو ہے وہ بھجوائی جائے. اسی طرح سے انویسٹیگیشن نشتر کالونی کی بات کریں تو انہوں نے اندھے قتل کا سراغ لگاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا. 25 سالہ شارون خان جو ہے وہ قومی کے قتل میں ملوث خالہ زان ملزم جو تھا اس کا جو کزن تھا وہ ذیشان گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم ذیشان نے فائرنگ کر کے اپنی خالہ کے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کیا تھا اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا. یہ ٹوٹلی بلائنڈ مرڈر تھا جو کہ ٹریس کیا گیا ہے, جو کہ قاسم گجر وہاں پہ انچارج انویسٹیگیشن تعینات تھے. انہوں نے بڑی مہارت سے جو ہے وہ اس ملزم کو گرفتار کیا ہے, جبکہ ملزم ذیشان کو اس لڑائی کا رنج تھا جو قتل کی وجہ بنا. SSP کا کہنا تھا کہ استفاق ملزم ذیشان کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا. آخر میں مضبوط چلان مرتب کر کے SSP کا کہنا تھا کہ تمام ملزمان جو گرفتار کیے گئے ان کو سخت سزا دلوائی جائے گی. جی بہت شکریہ وسیم صابر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب حکومت نے 28 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں. آسیہ گل کو اسکیل 19 ممبر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ لاہور سے تبدیل کر کے اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے.
स्केल 19 के वाजिद अली शाह को महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। स्केल 19 के मोहम्मद राशिद डायरेक्टर जनरल कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डिपार्टमेंट को तब्दील करके SNG AD को रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। स्केल 19 के मोहम्मद अली अब्बास को फौरी मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब लाहौर में चार्ज संभालने के अहकाम जारी किए गए हैं। स्केल 19 के तजम्मुल अब्बास राना को ट्रांसफर करके डायरेक्टर जनरल कायदे आजम अकेडमी एजुकेशन डेवलपमेंट चार्ज संभालने के अहकाम दिए गए हैं। मजीद PMS ग्रेड 19 के 23 अफसरान के तबादले करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। लाहौर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोट लखपत की कार्रवाई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना नईम मुल्ला ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए पेशावर डकैत गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान में शहजाद और उसका साथी अरशद शामिल है। मुलजमान के कब्जा से शहरियों से छीने गए 15 अदद मोबाइल फोन्स, 1 अदद 125 मोटरसाइकिल, नकदी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और गन पॉइंट पर शहरियों को वारदातों का निशाना बनाते थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने शहर के मुख्तलिफ थानों में डकैती की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने सर्विसेज अस्पताल में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन DC लाहौर, प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज MS सर्विसेज डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक और दीगर अफसरान मौजूद थे। सर्विसेज अस्पताल में सुबह 10:45 पर यह वाकया पेश आया। सर्विसेज अस्पताल में मलबा हटाने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इमदादी टीमों ने बर वक्त आकर इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया। अगले 3 घंटों में सर्विसेज अस्पताल में इमदादी सरगर्मियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात के लिए आला सतह पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। तहकीकात में जिम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सर्विसेज अस्पताल में इमारत के गिरने का रीवैम्पिंग के मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं है। सर्विसेज अस्पताल की तमाम इमारत का ऑडिट करवाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल में रीवैम्पिंग का काम रोक दिया गया है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।